Shumaila, connecting with me. We are three people. Hello. I cannot hear you, Vania. Vania and Shumaila Fazal. I can see both of you. Please unmute your mic so I can hear you. Hello, Assalamu alaikum. Salam. I can hear Shumaila. Yes. I am Ashaz. Yes, yes. Yeah. Oh, okay, Ashad. How are you? Good afternoon. So, Vania Shehzad, I cannot hear you. Please, can you open your mic? There will be on your left hand side mute button, a mic button, please. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Vania. How are you? Hello, Yes, Vania. How are you, Vania? I'm fine. You can hear me? Okay. Inaya is joining us. Inaya is joining us. Welcome, Inaya. Urva. I can see Urva as well. Kids, can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay, good. Let everybody come, so we will start, inshallah. First class, if there are any mistakes, anything, no problem. Urva Shakil, I can see you, but I cannot hear you. Vania, please, can you unmute your mic so we can talk for a while? Hi, Urva. Okay. Assalamu alaikum, Urva. I can see you. Welcome to Zoom class. Walaikum assalam. Walaikum assalam. I am Umruhan, and I will be teaching you all today science lesson number 2, unit number 2, inshallah. But please, everyone, join me. Okay. So far, we have only 5 people. So, total 14 people who were asking to join. So, please come fast, everyone. Urva, do you have textbook with you and Ashad? Yes. Good. Just for a while, wait. I want other members to join me. Let everybody join us so we can start the lesson. Till that, all of you can ask me any question, anything. Ask any question. Urva, you can ask me any question, beta, regarding anything you want to ask. You have any confusion, you can talk to me. Why all other members are not coming? How are you, Miss? I'm good. Have you ever seen me before? Have you seen me before? No? Okay. I will be your teacher for a few days. For this term, I will try my best to explain everything to all of you. Nice to see you, Miss. Welcome, welcome. Same here. Ashaz, can you open your video? Vania and Inaya, please, can you open your video? So I can see all of you. Please, for a while, I shall see all of you. Welcome, Hajra. Welcome, Hajra.
I cannot see anybody else. Ashaz, Inaya, Vania, Hajra, I want to see you kids. Come on, show me your beautiful faces. बच्चों कुछ बात करो मुझसे. एटलीस्ट जब तक सब आ नहीं जाते हम कुछ बात तो कर लें, फिर हम क्लास भी स्टार्ट करते हैं. वानिया प्लीज टॉक बेटा, कोई तो बात करे मुझसे. जी जी वीडियोस ऑन ही नहीं कर रहे आप लोग. मैं आपको देखूं तो Yes. so beautiful. Sorry. Hajra. Assalamu alaikum Hajra. How are you? Welcome, welcome. Welcome kids. Yes Ashaz, I want to see you. Vania, Inaya, I want to see you beta. One minute. Okay beta, okay. In 2 to 3 minutes, if other members will not come, we will start our class, okay? Your books are open with you? This is science book. Everybody has a rough copy. Everybody have rough copy with you? Yes. Paper, rough copy, something. Yes. Or it's very good if you prepare notes with me. Like every subject, make a folder or make a note. So throughout the session, you have good amount of, okay, you have good amount of resources, inshallah. 1 minute, somebody else is joining. Give me time, so I will allow them. Okay. Yes, Vania. Good to see you, baby. Asha? Please allow me. I am coming on my tablet, so Okay, beta. this is Most welcome. So only in 2 to 3 minutes we will start our session. Okay. So your books are ready with you. This is science. yes. I hope you all have received Google Classroom syllabus for science subject and other subjects as well. Yes. Okay, Yes. so what we will do today, we are starting our science. Okay, this will be our science and unit number 2. Open your book. So because if like this I will show you, it will show you reverse. हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. Just a minute. Perhaps it may incorrect meeting passcode. I don't know why. So 1 minute. Which is the passcode which everybody is using? The same passcode everybody is using. Can you see me still? Yes. Yes. Okay. Okay. Good. Okay. So. Because today's first class, no? So okay, now I will not make anybody of you wait. I will start my lesson. So open the page number 14. Oh, sorry. Open page number 11. Come in. Kids, can you see something on your screen? Yes. 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 It is about, what is written? Who can read for me? Can you read for me? Anybody can read for me? Microorganisms. Okay. So the first thing, our unit is unit number 2, that is microorganisms. And okay, microorganisms, health and disease. Very good. What all of you know about microorganisms? Have you ever heard this word before? No. 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 Do you know? Sorry. Do you know what organisms are?
Hajra, if you will mute your mic, how will I hear you, baby? Okay, kid. Okay, so what we are learning today, great. Microorganisms, health and disease. First of all, I want you to write and learn this. Where this is spelling? Where is my screen? What is coming on my screen? Can you see on my screen? Yes. What is it? Where it's gone? I don't know where it's gone. Let me open it again. 1 minute. Yes. Now you can see on the screen. No, so there are words. Yes. Yes. The first word is microorganism. First of all, I will explain you what is organism. Are you all listening? Please write this word microorganism. Okay. Everyone. Microorganism, you can see it's over here. Just a minute, I will add note for you. This is the word which is this word, microorganism. Organism means anything which is alive, which has life, living things. We all are part of organism. Don't write definition, just understand, and later all I will provide you everything. Just learn and understand that what microorganism is. So any living thing from what happened? जी बेटा बोले किसकी हेल्प चाहिए? Okay बेटा, no problem. आप सब सुन रहे हैं ना? Are all of you listening to me? Yes. Yes. Okay. Microorganisms are small living things. Sometimes we can see them, sometimes we cannot see them. ये देखो ये सारा डिस्प्ले हुआ. So microorganisms, have everybody got it? What is microorganism? Yes. Okay, the small living things like bacteria, like viruses, like cells, the small living the small living things in our body, around us, everywhere. Mostly we cannot see them. Micro means small, organisms means living thing. Okay, so microorganisms are small living things. Okay, so the next word is disease. Do you all know about disease? What disease are? Yes. Yes. Okay, disease are kind of sickness. इसको हम बीमारियां भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं. हमें जब भी कोई वायरस अटैक करता है, हमें जब भी कोई चीज से हम बीमार होते हैं, वो बीमारी की वजह कोई ना कोई डिजीज होती है. ओके, कोई जरासीम होता है. डिजीज को आप जरासीम भी कह सकते हैं उर्दू में, लेकिन वो बीमारी है एक्चुअली. उन जरासीम पर्टिकुलर वायरस या जर्म्स की वजह से हमें डिजीज हो जाती है. डिजीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ. ये आपको कभी कभी जो है बहुत ज्यादा बीमार करती है, कभी कभी आपका इम्यून सिस्टम आपको ठीक भी कर देता है. यू हैव सम गुड फूड एंड ऑल. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज विटामिन. यू ऑल नो अबाउट विटामिन? Yes. Yes. They are kind of boosting agents. ये आपकी डाइट में होते हैं, खाने में होते हैं, ये आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग करते हैं. आई विल नॉट गो फॉर ईच वर्ड. इतना ज्यादा टाइम मैं लेसन की तरफ ही जाऊंगी, बट आई विल जस्ट गिव यू small example. So the next word is protein. Protein. These are vocabulary words. I want you all to write them or at least understand them. इनको मैं सारा आपको वर्कशीट ये सारी भेज दूंगी, ठीक है, later. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे खाने में होते हैं और ये हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए होते हैं, जो डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इफ यू विल ईट ब्रेड, एग, मिल्क, वाटर,
They all contain vitamins, proteins, carbohydrates. Okay. The next one is virus. Anybody know about virus? आजकल तो बहुत सुन रहे हैं आप सब वायरस के बारे में. Yes, Urva, Mania. Yes. What do you know about virus? Virus are also kind of microorganisms. ये छोटे germs होते हैं जो हमारी body immune system को attack करते हैं. And they are Virus can grow and survive only when they are in the living cells of organisms. Very good. Ashad, no? Is Ashad speaking? Yes. Okay. So ये है कि एक मिनट कोई और तो नहीं आ रहा जिनको मैंने एडमिट करना है. Okay. So ये कहाँ गए? Viruses हमें हमारे लिए harmful भी होते हैं. They help us to get back to our health also. Fungi. What do you know about fungi? Anybody know about fungi? Some fungi are unicellular and some are multicellular. Okay, fungi ऐसे छोटे से यानी डॉट्स जैसे स्पॉटिंग जैसे होते हैं और ये हमारे स्किन को लग जाते हैं, हमारे खाने को लग जाते हैं एंड दे स्पॉइल आवर हेल्थ भी, हमारे फूड को भी स्पॉइल करते हैं, हमारी हेल्थ को भी स्पॉइल करते हैं. दे ऑल्सो harm our skin. They are mostly found in wet areas. ज़्यादा पानी होता है. वो ऊपर हमारे ऊपर सीधी असेंबली है ना, उन्होंने भी दिखवाया तो वो अंकल आए हैं, कह रहे हैं दीवार पे होल नहीं करेंगे बेटा, तो वो उन्होंने वायर कनेक्ट करनी है ऊपर वाले फ्लैट में. Who is talking? बेटा मुझसे बात कर लें घर में, बाद में बात करा दो. Okay. Hello. Yes. Now another thing is bacteria. Bacteria is also a kind of germ. ये भी छोटे छोटे होते हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए इन सब चीजों को देखने के लिए. माइक्रोस्कोप एक पावरफुल ग्लास या मिरर या कैमरा होता है. You know, in the laboratories you have seen in the pictures, in the movies. इसके नीचे ही हम अगर अपना हाथ रखें या कोई भी आइटम रखें, कोई चीज सरफेस के नीचे रखेंगे तो ही जाकर हमें ये सब नजर आएंगे. इनकी शेप कैसी होती है, ये कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये सारे बैक्टीरिया हमें तब नजर आएंगे. ओके, द अदर वर्ड इज प्रोटोजो. ये भी एक किस्म का बैक्टीरिया वायरस है, ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. ओके, द अदर वर्ड इज, सॉरी मैं हाईलाइट नहीं करी, डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, किसी भी चीज की कमी. अगर आप पानी नहीं पिएंगे, you will not have good amount of food in your जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, तो आपकी बॉडी में वो कमी होना शुरू हो जाएगी. उसको डेफिशिएंसी कहते हैं. ओके, नॉन कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एनी डिजीज जो आप यहाँ से यहाँ पास नहीं हो सकते. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि वो डिजीज को मिल जाए, वो कम्युनिकेबल होते हैं, और जो दूसरों को नहीं मिलते और आप सबके अंदर ही रहते हैं जर्म्स, वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं. जैसे आजकल आप कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं, इट मींस कम्युनिकेबल, एक बंदे से दूसरे को, फ्रॉम वन टू अनदर. तो ये फैल रहा है, इट्स इन्फेक्शियस, ये फैलता है. ओके, यूनिसेल्युलर, हर बॉडी में एक बॉडी का जो स्टार्ट है बनना शुरू होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम सेल, and that cell divides, multiplies into another cells and make a tissue. That tissue divides and make an organ. The basic part, the basic life is from cell. Okay, हम जहाँ से start हुआ है बनना, that is from one single cell. फिर वो multiply होके tissues बनते हैं, बहुत से tissues. If you touch your body like this, you will see these are all parts of tissues. Okay, वो क्लीनिक्स वाला टिश्यू नहीं, फ्रॉम विच यू क्लीन योर फेस, द टिश्यू विच इज इन आवर बॉडी, जिसको आप उर्दू में कह लेंगे वो गोश्त भी है. ठीक है, हमारा जो सारा गोश्त होता है. सो दैट टिश्यूज. ओके,
ओके, नो प्रॉब्लम। जिनके पास बुक नहीं है उनको सारा ये रिकॉर्डेड लेसन बाद में हम दे देंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप ये लेसन हम कल भी करेंगे, आज हम सारा कंप्लीट नहीं कर रहे। तो और सेल्यूलर का मतलब है यानी जिसमें बहुत ज्यादा सेल्स हो और कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता हो, दैट इज सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर वो वायरस या वो बैक्टीरिया जो सिंगल सेल से बना हो, उसके अंदर मजीद पावर नहीं होती कि वो बढ़े, वो एक ही रह जाता है। डिकम्पोजर, द अदर वर्ड इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब है एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा वायरस, बैक्टीरिया होता है एक्चुअली, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड आइटम्स को, डेड बॉडीज को, डेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को खाना खाते 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 खराब करके मट्टी के साथ उसको मट्टी कर देता है। ओके, so that is kind of decomposer. Usually ये हमारे soil में होता है, हमारे वेजिटेबल्स ग्रोइंग के लिए, फ्रूट ग्रोइंग के लिए, हमारी क्रॉप्स ग्रोइंग में डिकम्पोजर्स का बहुत ज्यादा काम है। स्मॉल इंसेक्ट्स आर ऑल्सो हेल्प द बॉडीज एनीथिंग टू डिकम्पोज। उनको खाती हैं, फिर उनको ये यूज कर सकते हैं, उनकी डाइट खुराक बन जाती है ना प्लांट्स की, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अगर आप बहुत सारा फ्रूट वेजिटेबल एक जगह इकट्ठा करके उसको बरी कर दो लैंड के अंदर, कुछ अर्से बाद वो मिट्टी बन जाएगा। इसमें डेके का मतलब खराब हो जाना, मर जाना। ओके, तो उसको डिकम्पोजर कहते हैं। वो ऐसे ब्लैक कलर की डस्ट बन जाती है, और या वो एजेंट को डिकम्पोजर एक्चुअली कहते हैं। ओके, द अदर वर्ड इज मोल्ड। आपने कभी लेमन फ्रूट कोई चीज देखी है जो जली हुई होती है, खराब हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, आप उसे नहीं खा सकते। यूजुअली लेमन गेट्स ग्रीन, एप्पल गेट्स ब्लैक, एंड ऑल अवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। या आप डेड फिश देखें, स्मेल होती है, रॉट हो जाती है। रॉट का मतलब गल सड़ जाना। तो इस सब चीजों को आप यूं समझ लें कि वो मोल्ड, उसको मोल्ड लग जाता है। ब्रेड, यूजुअली यू सी द ब्रेड इन द प्लास्टिक पैकेट is becoming black. Okay, उसको मोल्ड लग जाता है। That mold are small black color spots, जिसके बाद वो खाने के काबिल नहीं रहता। वो मोल्ड बैक्टीरिया होता है, that is a kind of बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट कर रहा होता है आपके खाने। Yes, that's good. Yeast, Y-E-A-S-T, yeast एक ऐसा जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, is the name of a kind of bacteria जो कि हमारी योगर्ट बनाता है, चीज बनाता है। If you add an amount of yogurt in milk and keep it covered overnight, तो भी योगर्ट बन जाएगी। That means it creates a bacteria which is good for our health. सब बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होते। Okay, so the next word is biodegradable. कोई भी ऐसा आइटम, ऐसी चीज जो मट्टी में मिलने के बाद मट्टी बन जाती है, उसके साथ हार्मफुल नहीं रहती। अगर समंदर में गई है तो वो पिघल जाती है, और मट्टी में मिलती है तो इट बिकम्स लाइक अ डस्ट, इज बायोडिग्रेडेबल। मतलब इट फिनिशेस। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप जिधर भी प्लास्टिक फेंकेंगे वो पोल्यूशन करेगा। यूजुअली प्लास्टिक, स्टील, ऐसी चीजें पोल्यूशन करती हैं। वी शुड नॉट थ्रो देम इन द सी, वी शुड नॉट थ्रो देम इन द लैंड। जहां भी होगा, जब आप प्लास्टिक निकालेंगे तो प्लास्टिक ही निकलेगा। तो इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये सेफ नहीं है। प्रिजर्वेटिव, देयर आर सम एजेंट, सम बैक्टीरियल परफॉर्मेंसेस व्हिच कीप योर फूड स्टोरेबल। यानी जैसे हम जैम खाते हैं, तो जैम प्रिजर्व हमारा फूड है, उसको हम एयर टाइट कर देते हैं, उसमें एयर नहीं जाता, वो कुक्ड होता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, हम उसे कितने अर्से तक खाते रहते हैं। पिकल्स जिसे अचार कहते हैं उर्दू में, वो भी प्रिजर्व है हमारे लिए, हम उसे स्टोर करते हैं। पिकल्स काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन, एक सेफ प्रिजर्वेशन है। जिनमें हम केमिकल्स डालते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। ओके, माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली अ काइंड ऑफ ग्लास। एक माइक्रोस्कोप है, लेबोरेटरी में होता है, जिससे आप जर्म्स वगैरह देख सकते हैं और छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। इन्फेक्शन, किसी भी चीज का जो नुकसान है, आपको चोट लग जाती है, उसको आप ठीक नहीं करते, उसको दवाई नहीं लगाते, दैट क्रिएट्स एन इन्फेक्शन। दिस हैपेंस इन योर बॉडी व्हेन यू योरसेल्फ, देखिए अब हमारे हाथ है, आप अपने हाथ देखें, आपको नजर नहीं आएगा।
दिस इज पावरफुल, या ये हमारी हेल्दी स्किन है, इसके ऊपर कोई कट नहीं है, इस पर कोई इन्फेक्शन नहीं है। बट जब ये कट लग जाता है तो सेल्स की लाइफ स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर के लिए, वहां पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, पस पड़ जाती है, ब्लड आता है, वो सख्त हो जाता है, उसमें पेन रहता है, रेडिश रहती है, दैट मीन्स इट गॉट इन्फेक्शन। जैसे हम उस पर मेडिसिन लगाना शुरू करते हैं, हमारे सेल्स बाहर से, हमें सेल्स जो मेडिसिन में होते हैं वो हेल्प करते हैं हील करने में, तो हमारे सेल्स जनरेट होते हैं स्किन के, और वापस हमारी स्किन नॉर्मल हो जाती है, जख्म का दाग शायद रह जाता हो, जख्म खत्म हो जाता है। द वर्ड मलेरिया, प्लाग एंड मैं ये सारे नाम इकट्ठे लेती हूँ, टाइफस, निमोनिया, डायरिया, ये सारे एक किस्म की बीमारियां हैं जो हमारे बॉडी में फूड पॉइजन की वजह से होते हैं, पानी की कमी की वजह से होते हैं, गलत इन्फेक्शियस पानी पीने की वजह से होते हैं, एक्सपायर्ड फूड खाने की वजह से होते हैं, हमें वॉमिट्स और मोशन लग जाते हैं, हमें वीकनेस होती है, ये सारी उन बीमारियों के नाम है। यू ऑल हैव टू लर्न दिस वर्ड। हुक वॉर्म, ये एक किस्म का वॉर्म होता है जो हुक की शक्ल में होता है, इट इज आउटसाइड इन जंगल्स, इन वेट प्लेसेस। अगर आपने अपने आप को सही फुली वो नहीं लगाए हुए, मेडिसिन नहीं लगाए, एंड यू गो इनटू द फॉरेस्ट, so one of them can attack you and can go into your body and mix with the blood and cause many disease and infection. Food poison, गलत खाना खाने से, खराब खाना खाने से जो आपके स्टमक में गड़बड़ होती है उसको फूड पॉइजन कहते हैं। You can get vomit, you can get loose motions and so many other things. Sterilized, the word sterilize means किसी चीज को इंजेक्शन के जरिए या मेडिसिन के जरिए क्लीन कर देना। इफ एनी पर्सन इज स्टरलाइज, इसका मतलब है उसको हमने ठीक करने के लिए एक वो लगाया है, इंजेक्शन लगाया, जैसे आपको बुखार होते है एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी स्टरलाइज किया जाता है, उन्हें एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उनके ऊपर बाद दफा हार्मफुल केमिकल डाले जाते हैं जिससे वो खराब हो जाते हैं, खराब नहीं होते आएंगे। ये पॉस्चराइजेशन भी एक किस्म का प्रोसेस है जिसमें आपकी जो फूड है इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो एक्चुअली लॉन्ग हार्मफुल होते हैं, लेकिन फौरी तौर पे आपका फूड स्टोर करने के काबिल होते हैं। एंड व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक इज अ काइंड ऑफ जर्म, एक स्पेशल किस्म का वायरस होता है जो आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है थ्रू मेडिसिन, थ्रू पिल्स, थ्रू इंजेक्शन, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। ओके, सो दीज वर डिफिकल्ट वर्ड। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट। मजा आया वर्ड्स को पढ़ने के बाद? तो और मैंने सारे नोट डाउन कर लिए। वेरी गुड, आई विल सेंड यू दिस लेटर। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं ये आपके लेसन की पिक्चर्स हैं। हम कल लेसन पढ़ना शुरू करेंगे। आज मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दिया है कि जो फूड है सब में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डाइट। हमारी डाइट क्या होती है? आई विल जस्ट रिकॉल द लेसन, और कल हम आप सब ने लेसन आज पढ़ना है। कल हम इसका रीडिंग, हम इसके प्रैक्टिकल काम की तरफ जाएंगे ताकि ये लेसन 2 दिन में हम खत्म कर लें। ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये जो अभी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? आप देख रहे हैं स्क्रीन पे? कोई इशू नहीं है, वो चला जाए, लेकिन घर आके सबमिट कर देंगे। अब आप सबने क्या करना है? टाइम टू रीड इट। Can you answer one more thing? Which of the following are ways to keep food free from germs? Freezing, cooking, sterilizing, all of these I have explained you. टाइम खत्म हो रहा है। The class is sterilizing. तो आपको ये फायदा हुआ कि इन सब चीजों के बाद जो है आपको थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है लेसन। यस बेटा, यस, यू हैव टू कंप्लीट दिस। इसके आंसर सारा कुछ ये देखें, यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको आंसर्स भी भेजे हुए हैं। कैन यू सी दिस? यस, ये सारे आंसर्स भी हैं आपके पास। ओके,
जो लेसन, ये सारा का सारा लेसन जो मैंने आज आपको थोड़ा सा वर्ड में समझाया है, वोकैबुलरी में समझाया, ये सारा यहाँ वीडियो में मौजूद है। ठीक, ये वीडियो का लिंक है, कैन यू सी दिस लिंक? आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको भेजती हूँ अभी थोड़ी देर में। और फिर यहाँ पर YouTube चैनल है, ये वीडियो वहां पर जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का? क्योंकि फर्स्ट डे और टाइम 40 मिनट से ऊपर जूम क्लास हमें देती नहीं है, हम उससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो दीज वर्ड, यस बेटा, नाउ आस्क एनी क्वेश्चन, इससे पहले कि क्लास बंद हो जाए। कल भी इसी टाइम में बहुत मजा आया। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। देखिए साइंस का यूनिट नंबर 2 कल हम कंप्लीट कर लेंगे। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, आंसर द क्वेश्चन। ये जो बुक में है ना, आपके जो बुक में है, तो ये सारा जो है ना, यस बेटा। टीचर कल भी इसी टाइम क्लासेस होंगी क्या? इंशाल्लाह बेटा 1 o'clock। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर जरा पहले या बाद में होगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, व्हाट इज दिस, टाइम टेबल स्केड्यूल भेज दूंगी, बट आई विल ट्राई टू बी एट द सेम टाइम। तो टीचर, यस बेटा। टीचर वी वांट टू डू दिस ऑल इन होम। नो बेटा, सी इफ यू कैन, इफ यू अंडरस्टूड। अभी तो हमने पूरा लेसन कंप्लीट, रीडिंग पूरे लेसन की नहीं की। आप लोग थोड़ी सी रीडिंग कीजिएगा, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कल हम मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, मैं कल सॉल्व करवाऊंगी। आप लोग सिर्फ वर्ड याद करें, उनके मीनिंग जहन में रखें। आई कैन आस्क यू टुमारो वर्ड स्पेलिंग, मैं आप लोगों से पूछूंगी, स्पेलिंग पूछूंगी, उनके मतलब। ओके, और दूसरा मैं आपको ये अभी सारा भेज रही हूँ, ये सारी वीडियो सारा कुछ भेज रही हूँ। जो ये सारा पेपर है ना जो मैंने आपसे शेयर किया है, ये सारा का सारा मैं आप लोगों को भेज दूंगी। और कल हम इसकी रीडिंग भी थोड़ी थोड़ी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक सब सॉल्व करेंगे। अब आएगी आपकी स्कूल की तरफ से वर्कशीट। ओके, द थर्ड क्लास विल बी, उस वर्कशीट के लिए हम एक क्लास करेंगे और यूनिट नंबर 2 हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, सॉरी आई कैन नॉट हियर यू। बोले, कुछ क्वेश्चन है बच्चे? पूछो, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन, आस्क मी बेटा। बी कॉन्फिडेंट, जब भी जूम क्लास में आए कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछे। सोच के आए टीचर का कल दिमाग खाना है, उनसे ये क्वेश्चन पूछना है, ये पूछना है। आफ्टर रीडिंग यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, टुमारो आई विल गिव यू द आंसर। बताएं, कोई क्वेश्चन है आपका? वानिया, इनाया, उर्वा, कोई क्वेश्चन है आपका बेटा? नो। तो कैसी रही आज की क्लास? डिड यू एंजॉय? बहुत अच्छी। यस, मजा आया? समझ आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेल्थ डिजीज क्या होते हैं? यस, यस मैम। अगर कुछ समझ नहीं आया लिख कर रखें, मुझे मैसेज करें, मैं कल क्लियर करूंगी। कल हम इसकी रीडिंग भी करेंगे, लेसन की थोड़ी थोड़ी बीच में इंपॉर्टेंट चीजों की। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। और अभी मैं ये सारा पेपर आप लोगों को भेज रही हूँ। वर्ड याद करके रखने हैं। कितने वर्ड हैं टोटल? मुझे नहीं पता कितने वर्ड हैं, सबको याद करके रखना है। आई विल आस्क। ओके 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 बेटा, आई विल लीव नाउ बिकॉज़ टाइम इसका खत्म हो गया। इंशाल्लाह टुमारो वी विल सी यू विद अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बाय टीचर। बाय टीचर। Just tell me this class. Just tell me how was the class? Did you enjoy it or no? Okay, beta. ओके ओके टीचर। Bye, baby. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. See you.